Good morning everyone. In today's video we will study Frederick Winslow Taylor's scientific management theory. In previous video we have studied Henry Fayol principles of management, which is given by Henry Fayol, and in that 14 principles were there. Now who was Taylor, or who was Frederick Winslow Taylor? Frederick Winslow Taylor was born in the year 1856 and died in the year 1915. He was an American who started his career as a mechanist in Midwell Steelworks in Philadelphia, and gradually through his hard work and progress, he rose to a position of the chief engineer. He introduced his observation and experiment based on scientific data. That is why his approach towards management is called as scientific management. For his contribution in development of management thought, he is known as a father of scientific management. Why he is called as a father of scientific management? Because his observation and experiments are based on scientific data. Now, Taylor management theory is based on scientific experiment. These theories involve the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. According to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumb and trial and error approach. The definition of scientific management by Frederick Taylor: scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. So according to scientific management, that is according to Frederick Winslow Taylor, scientific management consists of knowing what you want men to do exactly. तो आप जो लोगों से काम करवाना चाहते हो या फिर जो लोग काम करना चाहते हैं, and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. तो उनके हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट वो है जो लोग करना चाहते हैं और आप उनसे जो करवाना चाहते हो उसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी बोलते हैं, एंड विच इज़ गिवन बाय Frederick Winslow Taylor. Now, principle of scientific management. These principles are as follow. So, first principle is science, not rule of thumb. So, according to Frederick Winslow Taylor, he said it is a science, not a rule of thumb. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. तो ये जो रूल ऑफ थंब मेथड था जो पहले यूज़ किया जाता तो उसको हटाकर ये साइंस का अप्रोच यूज़ किया जा रहा है. साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, रूल ऑफ थंब इज सब्सटीट्यूटेड विद द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क. रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर. और जो ये रूल ऑफ थंब है ये पूरा का पूरा मैनेजर के पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिसाइड किया जाता है. द टेलर इंसिस्टेड upon scientific method for every small work. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method. तो according to टेलर ही सेड कोई भी छोटा वर्क हो या बड़ा वर्क हो, सबके लिए आपको बेस्ट वे सिलेक्ट करना है, एंड दैट बेस्ट वे इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. Standard required time, standard output should be defined by the manager. तो क्या टाइम लगेगा, क्या आउटपुट लगेगा, that should be decided with the help of scientific analysis, and he will decide what standard required time is required, what output will be required. This will help in saving time and human energy and will result into एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. तो यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा और ह्यूमन एनर्जी भी बच जाएगी विद द रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. अकॉर्डिंग टू टेलर, even a small production activities like loading iron sheets into box
कार्स कैन बी अ साइंटिफिकली प्लान। तो उनके हिसाब से अगर आप छोटा बॉक्स आयरन का शीट एक बॉक्स के अंदर या कार के अंदर लोड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको साइंटिफिकली प्लान करना होगा। सो इट इज़ अ साइंस नॉट अ rule of thumb. Next principle is harmony, not discord. According to this principle, there should be a harmony between the employees and the management. तो जहाँ पर भी आप ये अप्रोच यूज़ कर रहे हो वहाँ पर हारमनी होना चाहिए बिटवीन दी एम्प्लॉयज़ एंड दी मैनेजमेंट। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अगर हारमनी नहीं है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए देयर शुड बी हारमनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो अच्छा एनवायरनमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होगा जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ायर गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। दैट इज़ सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन should think about maximum prosperity of employees also. Third point is mental revolution. Taylor introduced the concept of mental revolution. What is mental revolution? Mind को change करना. Now, how you will change the mind of employees, how you will change the mind of the manager. Under this principle, Frederick Winslow Taylor focus on mental revolution. This principle focus on change in attitude of employees and management towards each other. तो इस principle में और ज़्यादा क्या फोकस किया गया है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों का जो एटीट्यूड है वो आप चेंज कर सकते हो। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पॉर्टेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट का जितना इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है सेम इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयज़ का भी है। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो आप फुल कॉर्पोरेशन कब दोगे? जब एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर पेमेंट, प्रॉपर वेजेस मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ अपना फुल 100% ऑर्गेनाइजेशन को देगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जितना कि मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो दोनों के बीच में हारमनी होगा तो ही कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। कोऑर्डिनेशन होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हो। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। नाउ ये जो मेंटल रेवोल्यूशन है आप इसको दो वे में लेकर आ सकते हो, या मॉनेटरी टर्म्स में या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स आप उनको अच्छा सैलरी दोगे, सैलरी इंक्रीज करके दोगे। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आप उनको अप्रिसिएशन करोगे, आप उनको अप्रिशिएट करोगे बाय गिविंग अवार्ड्स और बाय encouraging them. तो these are all mental revolutions solution. In this way you can revolve or change the attitude of the employees and management. Next point is fourth point, that is cooperation, not individualism. Under this principle, mutual cooperation between workforce, that is employees and management, should be emphasized. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into healthy working environment. So in this principle, Fayol stress on cooperation and not on individualism. तो यहाँ पर जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, टीम स्पिरिट होगा, इंटरनल कंपटीशन जो अंदर के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट शुड ऑल्सो कंसीडर the suggestions given by the employees in decision making process. Employees should be treated as an integral part of the organization in all respect. जो employees होंगे उनको भी आपको organization का एक part समझना है. At the same time, employees should resist themselves for going on strikes and making unnecessary demands from the management. अगर आपने उनको इंटीग्रल पार्ट समझा है तो एम्प्लॉयज़ ये जो स्ट्राइक्स पे जाते हैं, अननेसेसरी डिमांड्स मैनेजमेंट से करते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हो. दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और दोनों को ये समझ कर चलना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर्स की तरह है. अगर एम्प्लॉयज़ नहीं रहा तो भी स्ट्रक्चर गिर जाएगा और अगर मैनेजमेंट नहीं रहा तो भी स्ट्रक्चर गिर जाएगा. तो अगर आपको स्ट्रक्चर को संभालना है, ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, तो यू शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
Next point is division of responsibility. This is very important point because proper division of work should always be accompanied with division of responsibility between the manager and the employees. ऐसा नहीं है मैनेजमेंट है तो इन्हीं को सब कुछ करना है, एम्प्लॉयज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दोनों के बीच में प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, दोनों के बीच में प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. मेजर प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो प्लानिंग का काम होगा, डिसीजन लेने का काम होगा, आइडियाज़ इन्वेंट करने का काम होगा, इट विल बी डन बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी, वेयर एज एम्प्लॉयज़ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. तो जो वो प्लान आइडिया फ्रेम करेंगे उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज़. द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर. और इनका जो रिपोर्टिंग है, कौन से एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है या फिर टॉप लेवल ने कौन सी आइडियाज़ बनाए हैं या फिर कौन से प्लानिंग किए, ये रिपोर्टिंग शुड बी डन बाय द सुपीरियर. मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़. अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो वो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन फॉर दैट केस मैनेजर शुड हेल्प, encourage and guide the employees. It helps for best performance of manager as well as the employees. Sixth point is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. Best performance of any organization always depends on the skills and capabilities of its. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो पूरा डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है वो कैसे स्किल्स को यूज़ करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है. अच्छा स्किल और कैपेबिलिटी यूज़ किया तो इट विल शो द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज़ thus providing training and development program to the employees whenever required, it is very essential. तो जो ये स्किल और कैपेबिलिटीज़ है अगर आप उसको एनहांस करना चाहते हो तो यू शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ whenever required. It is very essential. It ultimately affect the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. तो हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो ग्रेटर एफिशिएंसी अटेन करे और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी लेकर आ पाए. उसके लिए टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को उनको ट्रेनिंग देना होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने होंगे और उसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना होगा. सो इट विल रिजल्ट इन टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर and employees for greater efficiency and maximum prosperity in any organization. Rest of the topic we will discuss in the next video. Thank you everyone.